بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بات عمران خان کے بیان کی۔ تحریک انصاف کو توڑنے کا منصوبہ بن چکا، مجھے نااہل کرا کر نواز شریف کو لانے کی گیم ہو رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس پر انہیں نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سازش کی جا رہی ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو فوج سے لڑایا جائے۔ میر جعفر اور میر صادق نے مل کر بیرونی سازش کامیاب کرائی۔ سازش کے دوسرے حصے میں ان کی کردار کشی ہوگی۔ شہباز گل نے جو کہا اگر خلاف قانون تھا تو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز گل نے اگر قانون کی خلاف ورزی کی تو چارج لگایا جاتا، عدالت میں صفائی پیش کرنے کا موقع ملتا، مگر اس کو اٹھا لیا گیا۔ نواز شریف، مریم، آصف زرداری سمیت ان سب نے فوج کے خلاف بیانات دیے۔ شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے، اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں، اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے، اس کو جس طرح اٹھایا، اس کے ڈرائیور کو مارا گیا۔ عمران خان نے کہا ڈس انفارمیشن لیب میں 800 فیک سائٹس تھیں، پروپیگنڈا کر رہی تھیں، کوشش کی جا رہی ہے بڑی سیاسی جماعت کو فوج سے لڑایا جائے۔ وہ لوگ جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا۔ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب۔ یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی، اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں نہیں جانتا پاکستانی فضا استعمال ہوئی یا نہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بیرونی اخبار، ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے، وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا، ہم استعمال ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس پر مجھے نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ۔ میں اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں، تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اب یہ میری کردار کشی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کی طرف آئیں گے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے، دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں۔ اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے، ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہم سارے ملک کو بند کر سکتے ہیں، یہ الیکشن سے قبل ہمیں کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ اس مشکل سے نکلنے کا واحد راستہ صاف شفاف الیکشنز ہیں۔ ایتھلیٹ ارشد ندیم کے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر لندن میں بھی جشن منایا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ مزید احوال غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ لندن میں ارشد ندیم کی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر لندن میں جشن، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ میاں چنو سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایتھلیٹ ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے کی خوشی میں تقریب سجائی، جس میں ارشد ندیم کی گولڈ میڈل پہنے تصاویر آویزاں کی گئیں اور فضا پاکستان اور ارشد ندیم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ میاں چنو کے احسان شاہد کا کہنا تھا کہ یہ ارشد ندیم کی محنت کا ثمر ہے۔ ارشد ندیم کی اس کامیابی کا کریڈٹ ان کے پہلے کوچ رشید ساکی کو دیا۔ احسان شاہد نے حکومت پاکستان سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سمیت تمام ایتھلیٹس کی بھرپور سرپرستی کرنے کی اپیل بھی کی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز UK۔ والتھم اسٹوف میں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے زیر اہتمام 10ویں محرم کو شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پیر سید صابر شاہ گیلانی کا پہلا سالانہ عرس بھی منعقد ہوا۔
जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। नात खां हजरात ने अपने खूबसूरत अंदाज़ो अल्फाज में दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। पुश्त मुस्तफा हुसैन, आपका मुसल्ला हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थम स्टोर के ज़ेर एहतमाम 10 मुहर्रम को शोहदाए करबला के हवाले से रूहानी महफिल और पीर सैयद साबिर हुसैन शाह गिलानी का पहला सालाना उर्स मुनक्कद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। महफिल की सदारत साहबजादा पीर मजर हुसैन शाह गिलानी ने की। इस मौके पर नात खां हजरात ने अपने खूबसूरत अल्फाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके हाज़रीन महफिल के कलूब को मुनव्वर किया। रूह परवर महफिल में हजरत अली करमुल्ला वजह करीम और हसनैन करीमैन की शान में मनकबत भी पेश की गई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके पूरे खानदान ने ऐसी लाजवाल कुर्बानी दी है जो ता क़यामत मुसलमानों के लिए मशले राह है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा खानदान शहीद करवा दिया, लेकिन यजीद की बैत न की। इसी घराने से मोहब्बत मिली, इसी घराने से प्यार मिला, इसी घराने से हमें वो कुछ मिला कि हमारा दामन भर गया। उलमाए कराम ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, जबकि दीन भी हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दीगर उलमाए कराम ने पीर साबिर हुसैन शाह गिलानी की इल्मी खिदमात को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पीर सैयद साबिर हुसैन शाह ने सारी जिंदगी कुरान और हदीस की तालीम दी और लोगों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर किया। उन्होंने अपने बड़े भाई पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी के शाना बशाना बरतानिया में फरोग इस्लाम के लिए चलाई गई तमाम तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए साहबजादा पीर मुजम्मल हुसैन जमाती ने कहा, पीर सैयद साबिर हुसैन शाह वफा का बादशाह था। उन्होंने सारी जिंदगी अपने भाई के साथ मिलकर बरतानिया में फरोग इस्लाम के लिए दिन रात काम किया। आज हजूर क़िबला पीर सी साबिर हुसैन शाह साहब का सालाना उर्स पाक है। साबिर हुसैन वफा का बादशाह था और वफा की दुनिया का मुनफरिद शख्स था जो अपने भाई के साथ इंतहा की वफा। मैं कई मरतबा ये कहता हूँ कि गाजी अब्बास ने अपने भाई से वफा की, उनके बाद मैंने इनको देखा है कि अपने भाई से वफा करते हैं, और जो वफा करता है वो अहले ईमान है, जिसमें वफा नहीं उसमें ईमान ही नहीं। अल वफा मिनल ईमान। हजरत मौलाना अनवर हुसैन काज़मी, मौलाना इश्तियाक कादरी और दीगर ने कहा कि पीर सैयद साबिर हुसैन शाह ने बरतानिया में ख़त्म नबूवत और दीगर तमाम तहरीकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी के साथ मिलकर बरतानिया में इस्लाम की इशाअत के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आज हम सब हजरत पीर तरीक़त पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक में शरीक है। हजरत शाहजी साहिब में बहुत कमालात थे। आप अपने अंदर एक अंजमन रखते थे और समंदर थे, लेकिन खामोश समंदर। हजरत पीर साबिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब जिलानी हजरत वाली बगदाद शहनशाह जिलान की औलाद के उन अफराद में से हैं जिनको खुद सादात इकराम को फ़ख्र है और हुजूर मुफक्कर इस्लाम के छोटे भाई थे। बिलखुसूस यहाँ यूरोप में हज़रत पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब जिलानी की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ रसूल के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयद साबिर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला जो हुजूर क़िबला मुफक्कर इस्लाम के बरादर असगर हज़रत अल्लामतुल असर अल्लामा पीर सैयद मजर हुसैन गिलानी के वालिद ग्रामी थी। उनकी सारी ज़िंदगी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के मुताबिक गुजरी और कुरान की तरवीज व अशात और इस्लाम की तरवीज व अशात में गुजरी। आज उनकी याद में ये खूबसूरत महफिल सजाई जा रही है। बंदा का नाम आली मोहम्मद कादरी है। आज यहाँ दारुल उलूम जामिया कादरिया जिलानिया में हज़रत पीर साबिर हुसैन शाह साहिब गिलानी का सालाना उर्स मुबारक है और दूर दराज से उलमाए कराम भी हाजिर हुए हैं
और अवाम उन्नास तो बेशुमार हैं। अल्लाह ताला पीर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। उर्स पाक का खूबसूरत एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए किराम ने कसीर तादाद में शिरकत की और जिक्र हुसैन और पैगाम करबला को आम किया। आज जो उर्स हो रहा है यह साबर शाह साहब के एजाज़ में हो रहा है, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने वो जो बड़े उनके भाई हैं शाह साहब, पीर साहब, उनके बड़ा साथ दिया है, और हमारी दुआ है, उनका नाम भी साबर था और बहुत साबर थे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। शाह साहब बड़े अच्छे इंसान थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजार कर गए, और मैं समझता हूँ कि ऐसा भाई हर इंसान को नसीब हो, जैसे उन्होंने शाह साहब की वफादारी की है उनके बड़े भाइयों की, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। आज देखें माशाल्लाह पूरे यूके से लोग तशरीफ लाए, आलम दीन आए, और बाकी बेशुमार कम्युनिटी आई है। तो हमारी यही दुआ है कि मज़हर शाह साहब को अल्लाह ताला सब्र दे और उनके वालिद साहब को आला मकाम दे जन्नत। महफिल के आखिर में शुरका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। महफिल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी खादिम बज्जाड़ की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें नामवर कारोबारी शख्सियत मियाँ मुश्ताक और पार्टी के दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। दारुल हुकूमत रियाद में दिए गए इशाये में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों समेत समाजी अदबी शख्सियात भी शरीक थीं। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना और सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी खादिम बजाड़ समेत दीगर ने नामवर कारोबारी शख्सियत मियाँ मुश्ताक को खुशामदीद कहते हुए कहा कि दियार गैर में जहाँ वर्कर्स मुल्की सरमाया है, वहीं पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी मुल्क का फ़ख्र है, जो हर मुश्किल वक्त में अपने ओवरसीज़ भाइयों की मदद को यकीनी बनाते हैं। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी जिस अंदाज से अपनी सलाहियतों को बनवा रही है वो काबिल दीद है, और ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान की भी भरपूर खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है। इशाये की तकरीब के आखिर में यौम आज़ादी का केक काट कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया गया। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, जिसमें शरीक ओहदेदारों का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो जमहूरी सोच के साथ पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकती है। इजलास में रूदाद जानते हैं नुमाइंदे 92 न्यूज़ उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के सदर वसीम साजिद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी साजिद नज़ीर की जानब से इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों का कहना था कि मिडल ईस्ट भर में तंजीम साजी करके वर्कर्स को मुतहरक और मुनज़्ज़म बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें हमें कामयाबी मिल रही है और वर्कर्स की बड़ी तादाद तंजीम साजी मुहिम में शिरकत कर रही है। पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी और दीगर का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी सियासी और जमहूरी सोच की हामिल वहद ऐसी सियासी जमात है जो पाकिस्तान को बेहतरी की जानब गामजन कर सकती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी की नौजवान क़यादत में पाकिस्तान का नौजवान तबका मुल्क की तकदीर बदल सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी पूरी दुनिया में है वो भुट्टो साहब की वजह से दूसरे मुल्कों में आए। भुट्टो साहब ने पासपोर्ट दिया, भुट्टो साहब ने पहचान दी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। वक्ती तौर पे कोई ना कोई बंदा किसी जगह पे भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवरसीज वालों के लिए बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, और आइंदा भी पीपल्स पार्टी की ओवरसीज के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। मुझे लगता है कि शायद 1977 के बाद पाकिस्तान वजारत खारजा पहली दफ़ा वापस सिविलियंस को मिली है, तो उम्मीद यही है, क्योंकि वक्त अभी बहुत थोड़ा हुआ है, फौरी तौर पे कुछ हम कमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि बिलावल जो है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखने में कामयाब होंगे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के। शुरका का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से उम्मीद है कि वो बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान की दुनिया भर से दोस्ती और सरमायाकारी को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगे। मेरा जो मकसद है वो PYO के तमाम जो लोग हैं, जो स्कैटर्ड, जो दुबई, शारजा, कतर, बहरीन, कुवैत, तमाम सिटीज़ की और तमाम कंट्रीज़ की तंजीम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनकी कनेक्टिविटी, उनका एक प्रॉपर हार्मनी के साथ उन लोगों को आगे लेके चलना, नए ब्लड को उसमें, और जो पैगाम है पीपल्स पार्टी का, जो पैगाम है पीपल्स पार्टी का, जो एक सोच है, उसको यूथ तक पहुंचाना। पीपल्स पार्टी और पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों का मजीद कहना था कि भुट्टोज़म का नजरिया पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बनाने का नजरिया है, जिसमें आम आदमी के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
बार्सिलोना कम्युनिटी ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग के हक में कौंसल खाने के सामने एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने कौंसल जनरल पर लगाए गए इल्ज़ामात की मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से ज़िम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। तफसीलात के लिए देखते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुजाहरा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल मिर्जा सलमान बाबर बेग के हक में आवाज़ें बुलंद। मुजाहिरीन का कहना था कि कौंसलेट हम पाकिस्तानियों का अदारा है, हमारे मुल्क का वकार है। मफाद परस्त टोला बेईमानी, साजिश और झूठे इल्जामात से शरीफुन नफ्स इंसान की पगड़ी उछालना चाहता है, जिसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। जुल्म के साबते हम नहीं मानते, जुल्म के साबते हम नहीं मानते। पाकिस्तान की बदनामी नामंजूर, पाकिस्तान की बदनामी नामंजूर। जाती शौक नामंजूर, जाती शौक नामंजूर, जाती शौक नामंजूर। पाकिस्तान की बदनामी नामंजूर। मिर्जा सलमान बाबर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चंद रोज पहले कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिर्जा सलमान बाबर बेग ने एक मुलाजमा को कौंसलेट में करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और कौंसलेट से निकाल दिया। खातून पर कम्युनिटी के साथ बुरे रवैये, बदतमीजी और कौंसलेट में काम करने के लिए आने वालों पर गाली गलौज करने का भी इल्जाम था। इस खातून की वापसी के लिए पाकिस्तानी एम्बेसडर शुजात अली राठौर कौंसल जनरल पर दबाव डालते रहे। कौंसल जनरल मिर्जा सलमान बाबर बेग के मुसलसल इनकार पर जब एम्बेसडर शुजात अली राठौर को यकीन हो गया कि कौंसल जनरल इस खातून को बहाल करने पर तैयार नहीं, तो खातून से कौंसल जनरल पर दस्तदराजी के बेबुनियाद और झूठे इल्जामात आयद करवा दिए, जिस पर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। कौंसलेट के बाहर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि कौंसल खाने का मसला हरेसमेंट नहीं बल्कि पिछले दौर में होने वाली करप्शन है। कम्युनिटी ने गुज़श्ता दौर में कौंसल खाने में होने वाली करप्शन पर गैर जानबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा किया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि एम्बेसडर शुजात अली राठौर जाती मफाद और शौक की खातिर दुनिया भर में पाकिस्तान का तमाशा बना रहे हैं। उन्हें स्पेनिश अखबारात में प्रेस रिलीज जारी करने से पहले 100 बार पाकिस्तान के वकार का सोचना चाहिए था। कौंसल जनरल मिर्जा सलमान बाबर पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो झूठों का और ज़ाती ख्वाहिशों का एक पलंदा है। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुतालबा करता हूँ कि इस वाक़े की सही इंक्वायरी कराकर हक़ और सच का दिखाया जाए। मिर्ज़ा साहब अपना बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। 1 साल की सर्विस में उन्होंने देखा है कि पिछले जो 2-4 साल में कम्युनिटी को कौन से मसाइल रहे हैं कौंसल के हवाला से। किसी की पगड़ी उछालने से पहले खुद अपने तरफ भी ध्यान करना चाहिए। कोई शर्म होती है यार, कोई हया होती है, मगर क्या पता आपको कि ये क्या होती है। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मजीद कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो हम सफारत खाना मैड्रिड के सामने या पाकिस्तान जाकर फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट के सामने बड़े मुजाहरे करेंगे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सियाहत के फ़रोग के हवाले से दुबई दुनिया की बेहतरीन जगह बन चुका है। नेपाल का सियाहत के फ़रोग के लिए 21 अगस्त को नेपाल एव टूरिज़्म दुबई 2022 का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर बू अब्दुल्ला होंगे। इस हवाले से इवेंट इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शो के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। जनूबी एशिया का छोटा सा मुल्क नेपाल, जो कदीम तहजीब और तमद्दुन का मस्कन है, इसकी दिलचस्प तारीख और सियाहत के फरोग के लिए नेपाली वफ्द की दुबई आमद। नेपाल के वफ्द ने मारूफ अरब समाजी व कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला के ऑफिस का दौरा किया और मुलाकात में उन्हें अपने इवेंट के हवाले से आगाह किया और उनको दावत भी दी। 21 अगस्त को नेपाल ईओ टूरिज्म टूर दुबई 2022 के नाम से इवेंट किया जाएगा, जिसमें नेपाली कल्चर और सकाफत की तशहीर की जाएगी। इवेंट के ऑर्गेनाइजर का इस मौके पर कहना था कि मेगा तकरीब का मकसद अमारात और नेपाल के सयाहती व सकाफती ताल्लुकात को फरोग देना है और यूएई में मुकीम पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर कौमियतों को नेपाली कल्चर से आगाही देना है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जिस तरह दुबई की सयाहत है, इसी तरह नेपाल की सयाहत को भी फरोग मिलना चाहिए। दुबई में जैसा टूरिज्म है ऐसा वाला हम टूरिज्म करना चाह रहे हैं। नेपाल से बहुत 10 नेपाल से 10 स्टार लोग आएंगे। नेपाल का सिंगिंग का, मूवी का, मीडिया का, टीवी का 10 से 21 तक स्टार लोग इधर आएंगे। ठीक है। 21 अगस्त का इवेंट है। हम आपको भी निमंत्रणा करते हैं, आप भी आए। हमारा कुछ कल्चरल
नेपाली कल्चर कुछ म्यूजिकल इवेंट देखिए। उधर का मीडिया लोग से वीवीआईपी आने वाला है। एक जो उपराष्ट्रपति को हमने इनविटेशन भेजा है। अभी तो 1 महीने बाकी है, इसलिए कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। हम फाइनल कर रहे हैं, बहुत मिनिस्टर लोग भी आ रहे हैं। वो देश का जो कल्चर है, जो देश का नेपाल छोटा कंट्री है, बहुत अच्छा है घूमने के लिए उधर आना। हम तो ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, अभी टूरिज्म टूर कर रहे हैं, तो फिर हम आपको निमंत्रण करेंगे घूमने के लिए इस इवेंट से। इस कार्यक्रम निपटाने के बाद भी आपको हम जरूर उधर आना बोले। उनका मजीद कहना था कि 21 अगस्त को होने वाली शानदार तकरीब में नेपाली गुलकार, फिल्म और टीवी स्टार्स आएंगे और अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए नेपाली वजीर आजम और मिनिस्टर्स को भी शिरकत की दावत दी गई है। तकरीब के मेहमान खुसूसी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने नेपाली कल्चर के हवाले से कहा कि जनूबी एशिया में नेपाल अपनी अलग पहचान रखता है। नेपाल बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, जहां सयाहत में सरमायाकारी के लातादाद मौके मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।